हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर मोशन का पार्ट 3rd। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन दिस पार्ट। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेलोसिटी। वेलोसिटी इट्स साइन इज v vector. It is defined as the displacement of a body by time taken is called velocity. Velocity actually क्या है? Displacement per unit time is called as velocity. Formula velocity is displacement upon time. Velocity is from here we are make the three types of formulas. Find the displacement as a time as well as SI unit of the velocity is also meter per second. Similar like as a speed. We know that the unit of the displacement is meter and unit of time is second. Then we put in the formula, we get it the meter per second. Velocity is a vector quantity but speed is a scalar quantity. It is a ratio of vector and scalar quantity because displacement is a vector and time is a scalar here. Velocity is called direction speed. What we say the velocity is called as directional speed. We know that speed is a no need of direction, but velocity, if the direction is confined with the velocity, if the direction is confined with the velocity, then it becomes direction is defined confined with the speed, then it becomes velocity. Velocity can change with the change in magnitude. वेलोसिटी बच्चों दो टाइप से चेंज हो सकती है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड यानी उसके अमाउंट में चेंज आ जाए, दूसरा उसकी डायरेक्शन में चेंज आए. वी आर डिस्कस द बोथ ऑफ द केसेस हियर. फर्स्ट, velocity is called direction. Velocity can change with change in magnitude. A car moves in a straight line towards the east direction with the variable speed. अब यहाँ देखिए हमारे पास एक कार है, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम में, और उसकी जो स्पीड है हर बार क्या है, अलग अलग है. V1, V2, V3. वी आर गेट इट द V1 इज 40 मीटर पर सेकेंड, V2 इज 60 मीटर पर सेकेंड एंड V3 इज 70 मीटर पर सेकेंड. तो अब आप देखोगे बच्चों इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी कैन, सेकंड देखिए, वेलोसिटी कैन चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन. अब वेलोसिटी में दूसरा क्या है, जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड अगर हम फिक्स रखें तब. लेट अस हियर द कार इज मूविंग द स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, बट इट्स फर्स्ट मूविंग इन ईस्ट, देन north, then east, then north, then its direction is changes. That's why the velocity here also changes. Another example of the with the changing direction. A body moves in a uniform circular path. अगर कोई बॉडी बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में यानी सर्कल के अलोंग मूव कर रही है, then its direction is continuously changes from the every point. अब कार चलना चाहती थी सीधा, बट वो लगातार मुड़ती जा रही है एक डायरेक्शन में और एक सर्कुलर पाथ को अटेन कर रही है. सो दैट्स वाई इट्स डायरेक्शन इज चेंजेस एंड वी से हियर द ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. And velocity changes with the changing in direction. First, velocity and starting velocity. जब हमारे पास शुरुआत में जो velocity होती है, starting velocity, then it is called as initial velocity. It can shown with the u vector. Then last velocity, starting velocity, ending velocity we say, and it can be shown with the v vector. Now change in velocity. We know that what is the mean of change. Change means final minus initial. Final velocity minus initial velocity. Change. Here is a delta is a sign which can represent the change. Now condition when the initial velocity 0. हम कब कह सकते हैं कि हमारी initial velocity 0 की. There are the two condition when the initial velocity 0. First, if the body is at rest. जब body रुकी हुई है, body कहीं move नहीं कर रही है, then the initial velocity is 0. When the object is at rest or stationary. That's first case. In the second case, when the object is thrown from a vertical height. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी ऊंचाई से फेंकेंगे तो स्टार्टिंग में वो क्या होगा, 0 पे होगा, यानी रेस्ट भी होगा, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो 0. कंडीशन व्हेन द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. फाइनल वेलोसिटी कब 0 होती है, देन फर्स्ट केस व्हेन अ कार इज स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक. जब कार चलती हुई रुक जाती है ब्रेक लगाने बाद, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी 0. एंड सेकंड केस व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड. कोई चीज़ को हमने ऊपर की तरफ फेंका है द मैक्सिमम हाइट, जब उसके बाद वो और ऊपर नहीं जाएगी, दैट एट केस फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. हम जानते हैं जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती और वहीं रुक जाती है. एट दैट केस पार्टिकुलर केस व्हेन इट्स कैन अटेन द मैक्सिमम हाइट, एट दैट केस फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. वेलोसिटी इज ऑल्सो 0 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0. थर्ड सिचुएशन, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, दैट मीन्स वी नो दैट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फॉर द राउंड ट्रिप, देन इट्स वेलोसिटी इज ऑल्सो से 0. टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज नाउ डिस्कस. फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. When an object moves in a unidirection or fixed direction, say straight line, with a constant speed,
दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास कोई कार है, वो फिक्स डायरेक्शन में चल रही है और फिक्स मैग्नीट्यूड से चल रही है। सपोज एक कार चल रही है सीधी लाइन में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, देन इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन विद द डिफरेंट स्पीड्स। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था, डिफरेंट चेंजिंग वेलोसिटी वाले केस में, जब वो डिफरेंट स्पीड से चल रही है एक फिक्स डायरेक्शन में, कभी 40 से, कभी 60 से, कभी 70 से चल रही है, दैट इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सेकंड, विद द डिफरेंट डायरेक्शंस। अब हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में ऐसा ही होता है कि वो सर्कल में जब मूव कर रहा है तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स, या दोनों ही चेंज हो तब भी ऐसा होगा। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट है उससे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, लाइक एज एवरेज स्पीड। दिस इज द मोस्ट ऑफ द केस विच इज यूज्ड इन योर क्लास 9th. But in the second one case, if the initial and final velocities are given, then we find the average velocity. How? It is a mean of initial and final velocity. तब हम कैसे निकालेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन कर देंगे, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टर्म, एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्चुअली बच्चों एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। जितना वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। अब देखो क्या है, हमारे पास एक गाड़ी है, इसका फील देखते हैं। कार चल रही है और हर सेकंड के अंदर उसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, क्लियर, इन एवरी सेकंड, पर सेकंड में। देन वी से इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्लियर। हाउ वी कैन से द चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कम होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर यूनिट्स पर सेकंड स्क्वायर। एंड वी नो दैट द ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज वेलोसिटी। अब देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का होता है सेकंड। देन वी पुट इन द फॉर्मूला, जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं वी गेट द मीटर पर सेकंड फ्रॉम द वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज मल्टीप्लाई विद द सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड बिकम्स सेकंड स्क्वायर, क्लियर। Now we say the acceleration is a vector quantity. Acceleration also having the direction. When the body is moving in a straight line, then the direction of acceleration is the direction of motion of the car, or direction of velocity we say. And the direction of acceleration is different in the different cases. Acceleration tells us how much change in the speed or velocity per unit second. This is a real feel of acceleration. कि कितना चेंज आ रहा है velocity में per unit time में. That is called acceleration. इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन जीरो। देखो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, हमारे पास एक कार है, वो फिक्स वेलोसिटी से चल रही है, हर बार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल हर एक इंटरवल में सेम होगा। तो 40 माइनस 40 बाई टाइम कितना हो जाएगा, जीरो बाई टाइम, जीरो बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। एट दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो। इफ द स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीज देन इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, यानी उसे एक्सेलरेशन के आगे आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द इक्वल अमाउंट ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट गिव्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम कहते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि लगातार जो स्पीड है वो सेम एक अमाउंट से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, चेंजेस इट्स स्पीड और इंक्रीजिंग इट्स स्पीड विद 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी बढ़ रही है हर एक सेकंड में। सी इनिशियली वो जीरो था, शुरुआत में वो जीरो था, जीरो होने के बाद में अगले सेकंड में क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 2 और बढ़ गई 4, फिर अगले नेक्स्ट सेकंड में क्या बढ़ गई 2 और बढ़ गई, यानी कि हर बार कितनी बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर। सी इन द ग्राफ, आप ग्राफ में भी देखोगे तो आपको ऐसा ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमारे पास पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, वो हमें स्पीड दे रहा था, बट हेयर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम की वर्सेस है, इसका जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप कहते हैं यहाँ इसे, ये हमें देगा एक्सेलरेशन। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन गिव्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन होगी यूनिफॉर्म। नाउ सी द नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द अनइक्वल अमाउंट ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी चेंजेस और इंक्रीजेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन वी गिव द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, मान लो कभी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, तो कभी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, कभी 4 मीटर से, कभी 5 मीटर से, at that case the acceleration is non-uniform. A car is moving straight path, C changes its speed from non-uniform state. देखिए चेंजेस इट्स यूनिफॉर्म। अब यहाँ देखो नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनेगा। अगर मान लो कोई
स्पीड लगातार बढ़ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, पहले 2 मीटर से, फिर कभी 6 हो गई, कभी 8, सीधा ही 12 हो गई, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म रेट आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन वी सी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बट विद द डिक्रीजिंग स्पीड। ऐसे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम विद द डिक्रीजिंग स्पीड। अब इसमें क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आती है, रिटार्डेशन आती है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, फॉर्मूला सेम रहेगा बट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की नेगेटिव होगी बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जाएगी ज़्यादा। इफ द स्पीड और वेलोसिटी इज डिक्रीजेज पर सेकंड देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, सपोज करते हैं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, सो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, देन वी गेट 3 माइनस 40 बाय टाइम। अब माइनस 37 बाई टाइम आएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, दैट इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन व्हेन द इक्वल अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। अगर लगातार हमारी स्पीड सेम इंटरवल से घट रही है, सेम रेशियो से घट रही है, देन वी से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एंड द स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इज नेगेटिव स्लोप। जब उस ग्राफ का स्लोप ऊपर से नीचे आता है देन वी से नेगेटिव स्लोप। Next is non-uniform retardation. When the unequal amount of the speed or velocity decrease in equal interval of time, then gives the non-uniform retardation. कौन सी retardation होती है, non-uniform retardation. A car moves on a straight path, decreasing its speed at the non-uniform rate. अब कोई कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे और डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, स्पीड उसकी लगातार घटती जा रही है तो उसकी नॉन यूनिफॉर्म रेट से घटेगी। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज graph related to the speed, velocity and distance. First we discuss about the what is a graph and slope of graphs. Slope of graph, it is defined as a tangent theta. In the mathematics we say that in a triangle the perpendicular ratio of the perpendicular upon base side, it is called as tangent theta. Are you seeing that here the line is straight, y axis and x axis straight line, then we say consider 2 points 1 and 2 here and this one ratio. Now from this path is x1, this total is x2, we find out this one, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला हिस्सा, और इस तरह से y2 माइनस y1 कर देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसे कह सकते हैं y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। It is take the 2 points on a graph, distance from one point to other origin is x1 and point 2 is x2, तो इसी तरह से हम यहाँ निकाल लेंगे। Now slope tangent theta perpendicular upon base, this side is perpendicular, y2 minus y1 is perpendicular and base is x2 minus x1, it is change dy upon dx, and we say that slope is tangent theta perpendicular upon base and it is also called as y intercept upon x intercept। यानी y intercept का रेशियो यानी y साइड का रेशियो, देखो बच्चों ये वाला और ये वाला आपस में, ये वाली साइड जितना मैग्नीट्यूड हो इतना इसका होगा, तो पैरेलल होगा तो ये वाला सेम होगा इसके साथ, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट कह सकते हैं, y साइड का जितना रेशियो है उतना ही x साइड के डिवाइड कर दे तो हमारे पास आता है स्लोप, और बीच वाली लाइन का ग्राफ आ जाता है। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन द एंगल थीटा इज फिक्स। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं इसे, तो हमारा टेंजेंट थीटा यानी ये जो थीटा है एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में, ये क्या रहेगा, हर बार फिक्स रहेगा। जैसे हमारी सीडीओ का एंगल बनता है फर्स्ट के साथ में फिक्स रहेगा। देन टेंजेंट थीटा इज फिक्स, सो वी से द स्लोप इज कांस्टेंट। उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्लोप कहते हैं हम उसे। दूसरा था इफ द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा ग्राफ पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसकी पैरेलल है एक्स वाली के, देन द स्लोप इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल जो बन रहा है पैरेलल का जीरो बन रहा है। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन का एंगल क्या होता है, जीरो होता है। देन स्लोप इज जीरो। इफ द ग्राफ इज कर्व्ड देन द एंगल इज थीटा। वेरी करेगा, जब हमारा ग्राफ कर्व फिक्स नहीं है तो हमारा थीटा क्या करेगा, लगातार वेरी करेगा। देखिए यहाँ का अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, यहाँ से अलग होगा। एक्चुअली टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को टच करके जाती हो। टेंजेंट क्या होती है, सर्कल की वो लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। इफ द ग्राफ कम्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जब ग्राफ ऊपर से नीचे देन वी से नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ एंगल देखोगे 90 से बड़ा बन रहा है, कितना बन रहा है, ग्रेटर देन 90, क्लियर। देन स्लोप इज नेगेटिव। Now we discuss about the distance time graph. What are the distance time graph? When the graph formed between the two axes, on y axis we take in the distance, on the x axis we take is the time. Then the graph is called as distance time graph. And the slope of distance time graph gives the speed. अब देखिए distance और time graph का जो slope होता है वो हमें क्या देता है, speed की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है,
स्पीड, ये हमें याद रखना है। इफ़ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन द स्लोप इज कॉन्स्टेंट, वी नो दैट अबव, हम अभी ऊपर जान के आए हैं कि स्लोप क्या होगा, कॉन्स्टेंट, एंड गिव्स द यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट कैन ऑल्सो गिव्स द यूनिफॉर्म मोशन, साथ में क्या देता है हमें, यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, फिक्स वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म होगी। इट कैन गिव्स द जीरो एक्सेलेरेशन, देखो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, लगातार एक ही वेलोसिटी से एक ही स्पीड से चलेंगे तो हमारी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सो दैट्स वाई जीरो। नेक्स्ट, व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द थीटा इज जीरो एंड टेंजेंट थीटा इज जीरो देन स्लोप इज जीरो, हेंस वी से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा जब उसकी स्पीड जीरो हो गई है। When the distance time graph is curved, जब distance time graph कर्व है तो स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो देने वाला है, एंड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी क्योंकि स्पीड लगातार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जीरो नहीं होगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। जब ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म है स्पीड डिस्टेंस टाइम का और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म आ रही है तब हमारा मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, ये जो टर्म है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्लियर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन गिव द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, इसका जो एरिया अंडर है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम बात करते हैं इसके अंडर एरिया की, तो इसके अंदर जो एरिया है, सरफेस एरिया है, यहाँ से देखो ट्रेंगल बनेगी, ये जो एरिया है इन दोनों का क्या देगा हमें, अब यहाँ देखो राइट एंगल ट्रेंगल, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, ये वाला बेस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, तो यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम आ जाएगा हमारे पास। सो ये याद रखना है आपने कि ये एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस। इट कैन ऑल्सो शो द वेलोसिटी स्पीड चेंजेस विद द यूनिफॉर्म रेट, हमें बताता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन वी से द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के देन हम कहेंगे वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। थीटा इज जीरो देन टेंजेंट थीटा, स्लोप इज कांस्टेंट और वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एक फिक्स वेलोसिटी चलेगा, एंड एक्सेलरेशन जीरो, जब वेलोसिटी फिक्स हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। नेक्स्ट देखिए सी ग्राफ, व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व्ड, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व होगा तो हियर द थीटा इज वेरिएबल, थीटा हमारा क्या होगा, वेरी करेगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट ग्राफ डी, व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन और बट नेगेटिव स्लोप के साथ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, देन वी से इट गिव द रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऊपर वाला है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लगातार आ रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इस तरह से होगा ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ। सम क्वेश्चन विच आर बेसिस ऑन दैट, हियर द ग्राफ शो फर्स्ट स्लोप, सेकंड स्लोप, थर्ड स्लोप, ए बी सी। सो जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। विच हैव द मैक्सिमम स्पीड, थीटा इज मैक्सिमम, जिसका थीटा मैक्सिमम होगा, देखो एंगल किसका मैक्सिमम एक्स एक्सिस के साथ, विच मेक्स द ए सबसे ज़्यादा बड़ा बना रहा है, फिर ये सो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा एक्स एक्सिस के साथ, सी का बड़ा है तो सी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब स्पीड ज़्यादा होने से हमें डायरेक्ट स्लोप वाले मेथड से हम बता सकते हैं स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा हम बता सकते हैं कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है लीस्ट टाइम के अंदर, देख सकते हैं आप यहाँ, ये टाइम एक्सिस पे कम टाइम ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है, इसने टाइम ज़्यादा लगाया, डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, इसने और कम ज़्यादा टाइम लगाया, डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। व्हेन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ग्राफ, हमारे पास देखो 4 ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इनमें से हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के इस ग्राफ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारी पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और इस ग्राफ में भी आप देखोगे स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो इसका ये हो जाएगा सॉल्यूशन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव द यूनिफॉर्म मोशन, आई मीन यूनिफॉर्म मोशन का आपको पता ही है, फर्स्ट वाला ग्राफ देने वाला है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल सिचुएशन, इम्पॉसिबल सिचुएशन देखो कौन सी में हो सकती है, ये तो पॉसिबल है, पहले स्पीड बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर पहले घट रही है, ठीक है, यहाँ से पहले फिक्स थी फिर घटने लगी, अब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्राफ कभी ऐसे बनते नहीं है, क्लियर। आई होप कि बच्चों आपको ये वाला पार्ट जरूर समझ आया होगा। इसी के साथ हम इस पार्ट को क्लोज करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।